friends, welcome back. Today we are going to start English chapter Reach for the Top, and it has two parts, which is first of all it's of a mountaineer, a young woman who had scaled Mount Everest twice. She was Santosh Yadav, and the second one, which is Maria Sharapova, who was a Russian girl and reached at the Summons Women's Tennis when she was barely 18. And about these two women, we are going to read in this chapter. So, over here, in the first part, it is saying that Santosh Yadav, first of all, the Santosh Yadav, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of the son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcomed. When her mother was expecting, Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to his surprise, the unborn child, that is Santosh grandmother, said that who was standing close by, told the holy man that they don't want a son. So holy man was very surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seems to work. Santosh was born to the sixth child in a family with five sons, a sister, to five brothers. She was born in a small village of Joniawaz of Rewari district in Haryana. So this is something about his her location and his starting of the journey. Then the girl was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. मतलब उसका नाम तो संतोष था, लेकिन वो संतोष थी नहीं, मतलब अपने बिहेवियर, अपनी मतलब ट्रेडिशनल लाइफ के ट्रेडिशनल वे में. सो शी बिगेन her living with her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred the shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. वो बोलती थी कि क्या अगर मैं सही बात पे चल रही हूँ, तुम लोग अलग बात पे चल रहे हो, तो मैं क्यों अपने कपड़े बदलूँ? उनको बोलो वो बदलेंगी. तो क्योंकि संतोष जब अलग कपड़े पहनती थी, बाकी सब इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, वो शॉर्ट्स पहनती थी. अब तो उसकी वजह से सब, अब बाकी सब क्यों बदलेंगे अपने ड्रेसिंग स्टाइल? उसी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसी ने सबसे पहले शुरुआत करी ना बदलने की. In the third para, now we are going to just parents, Santosh Yadav के parents की approach कैसी थी, the thinking of their parents. So we are going to learn this. Read this. Santosh parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even the country's capital, New Delhi. At that time, it was a very quite big thing, which was quite close by. But in line with the prevailing customs in the family, संतोष had to make do with the local village school. अब जैसे उसकी, वैसे तो उसके पेरेंट्स थे लैंड ओनर्स थे, एफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे, जो अपने बच्चों को न्यू दिल्ली के उस टाइम में न्यू दिल्ली भी भेज सकते थे बेस्ट स्कूल में. लेकिन वही प्रिवेलिंग कस्टम था कि जो, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि बॉयज़ वर ब्लेस्ड बट द गर्ल्स वर नॉट ब्लेस्ड. तो वही बॉयज़ को अलाउड था कि वो, मतलब गर्ल्स को भी अलाउड था, लेकिन उसके पेरेंट्स का अप्रोच ये था कि नहीं, उसके भाई जाएंगे लेकिन ये नहीं जाएगी. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर own quiet way. When the right moment arrived, at the right moment came, she turned 16. At 16, now second thing what happened, that at 16 most of the girls in her village used to get married, but Santosh was also that, but Santosh don't want to marry, she want to study a little bit more. But Santosh was also under the pressure for her parents to do the same, to do marry at as she was of 16 years old. Marriage as early as that was the last thing on her mind. मतलब
उसको सब काम करना था और एट लास्ट में वो मना करना था उसको, लेकिन सबसे लास्ट में थी शादी का, उसका ख्याल सबसे लास्ट में था उसकी लिस्ट में, वर्क टू डू लिस्ट में उसका लास्ट काम था मैरिज करना. She threatened her parents that she would never marry if she didn't get a proper education. तो ये पैदा तो लड़की हुई थी, लेकिन काम तो सब लड़कों वाले ही कर रही थी. पूरा गुस्सा, रूड, सब लड़कों जैसा ही था. नाउ अब शी लेफ्ट. अब उसी प्रॉपर एजुकेशन की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया और वो दिल्ली में चली गई और उसने अपने आप खुद ही दिल्ली के स्कूल में अपने आप को एनरोल करवा दिया, एडमिशन लिया. और जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, वी विल नॉट पे फीस फॉर योर एजुकेशन, तो उसने बड़े प्यार से बोला कि आप या तो फिर फ़ीस भर दो या तो फिर मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपने पैसे भर ही लूँगी. तो अब उसके पेरेंट्स को फिर अब उसको ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ऐसे बाहर जा रही है और फिर अलग स्कूल में तो पढ़ रही है, ऊपर से पार्ट टाइम जॉब भी करेगी. तो इसलिए उनके पेरेंट्स ने फिर से हार मान ली. और एक तो शादी के लिए तो हार मान ही ली थी कि अब ये तो वही, अब इसी एक ही लाइन से इन्होंने 2 बार हार मान ली, उसकी स्टडीज़ और उसकी मैरिज के ऊपर. देन her parents then agreed to pay for her education, wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. अब वो धीरे धीरे करके थोड़ी और बस थोड़ा टाइम और धीरे धीरे करके उसके फादर को भी लग गया कि मुझे तो लगता है ये पूरी की पूरी एजुकेशन लेके ही छोड़ेगी. फिर अब उसने हाई स्कूल भी पास कर लिया, उसके एग्जामिनेशंस भी पास कर लिया और फिर वो जयपुर गई, दिल्ली टू जयपुर. पहले वो हरियाणा में थी, हरियाणा से दिल्ली आई, दिल्ली से जयपुर गई. संतोष passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. संतोष remembers. अब संतोष को याद आया कि जयपुर में अरावली हिल्स के आसपास जो इसका जो कस्तूरबा हॉस्टल है और उसका ये जो रूम है वो अरावली हिल्स के आसपास है. तो अब वही अपने रूम से आसपास देख लगी तो उसको अरावली हिल्स दिखाई भी थी और उसने वो गई, उसको दिखी भी. फिर वो क्या देखती थी कि जितने भी विलेजेस थे वो ये देखा करती थी कि वो हिल्स पे तो चढ़ रहे हैं और अचानक से वो कहीं ऊपर जाके कि गायब भी हो जाते हैं. कैसे? वैसे तो इतनी बड़ी थी कि हाँ वो उसको पता था कि वो दूर तक जाएंगे तो गायब हो ही जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी वो गायब हो जाते थे. तो अब उसके मन में भी आए और मुझे भी जाना. सो वन डे शी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हर सेल्फ, मतलब फाइंड आउट व्हाट्स द ट्रुथ बिहाइंड, व्हाट्स द मेन ट्रिक बिहाइंड दैट. सो शी फाउंड दैट वो कोई विलेजर्स नहीं थे, वो सिर्फ माउंटेनियर्स थे. वो छोटे माउंटेनियर्स थे जो जा रहे थे. एंड जब संतोष यादव वो आस्क दैट कैन आई जॉइन यू योर ग्रुप, तो उसकी प्लेजेंट वो इतना हैरान हो गई, क्या इन सब ने तो इतनी जल्दी मुझे आंसर कर दिया. और उन्होंने सिर्फ आंसर ही नहीं किया कि हाँ तुम आ जाओ, बल्कि उन्होंने मोटिवेट भी किया कि तुम आओ चढ़ो, हम तुम्हें सिखाते कैसे चल. तो they answered in affirmative and motivated her to take to climbing. अब वो तो भाई बड़ी होती जा रही थी और वो इतनी डिटरमाइन हो गई थी कि अब वो पीछे मुड़ कर देखना भी नहीं चाहती थी. लेकिन तब भी उसने पैसे बचाए अपने और उसने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना कोर्स वहाँ पे स्टार्ट किया. अब उसने पढ़ाई तो उसकी ओवर हो गई थी, अब वो बड़ी भी हो रही थी और उसने अभी जस्ट माउंटेनियरिंग को ज्वाइन किया. तो उसने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को ज्वाइन किया. वहाँ पे उसका जो कॉलेज था, हर कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड इन द 19th of May. मतलब कि अब सब कुछ जल्दी उसको फास्ट ट्रेन पकड़ के सब कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि पहले उसने आराम से उसके हमारे भी नॉर्मल पेपर्स अप्रैल तक ख़त्म हो जाते हैं, उसके भी कॉलेज के सेमेस्टर्स अप्रैल में ख़त्म हो जाने थे. तो उसने आराम से अपना उत्तरकाशी में 21 को चली गई वो. लेकिन 21 मई को
लेकिन बाद में पता चला कि उसके जो सेमेस्टर्स हैं वो तो 19 मई में जाके ख़त्म हो रहे हैं, और 19 मई और फिर 2 दिन के बाद उसको उत्तरकाशी जाना है। ये क्या बात हुई? तो भाई देखा कैसे ट्रेन उसकी पकड़ी गई, कितना फास्ट फास्ट उसको काम करना पड़ा। अब वो वापस घर भी नहीं गई अपने, क्योंकि पहले उसने सोचा था कि मतलब अभी उसके पास अभी 1 महीने, मतलब आधे महीने, 15-20 दिन, तो इतने दिन में तो वो घर जा चली भी जाती, फिर वहाँ से वापस भी आ जाती और फिर नॉर्मल अपने उत्तरकाशी में चली जाती। लेकिन तब भी उसको घर एक्चुअली तब जाना था क्योंकि वो अपने फादर को सॉरी बोलना चाहती है कि सॉरी पापा, मैंने उन सबको माउंटेनिंग करते हुए देखा और मेरा भी मन मना, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया, इनवाइट भी किया, तो अब मैंने अपने आप को उत्तरकाशी में भी एनरोल कर लिया। लेकिन हाँ, मैंने सबकी फ़ीस मैं धीरे धीरे करके भर रही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है पैसों की। अब वो घर तो गई नहीं, अब मतलब उसको टाइम ही नहीं मिला क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 रात और 1 दिन बस इतना ही समय था, क्योंकि फिर हम अगले 21 को तो उसको वहाँ पे उत्तरकाशी जाना था। सो अब वो घर नहीं गई और उसने फिर अब वो ट्रेनिंग करने में चली गई, और जैसे ही उसको टाइम मिला उसने सबसे पहले लेटर लिखा अपने फादर को, अपॉलॉजी लेटर लिखा कि उनकी परमिशन के बिना उसने उत्तरकाशी में अपने आप को डाल दिया है, और उसको थोड़ी बहुत सॉरी भी फील हो रहा था। उसके बाद संतोष जो थी अब वही धीरे धीरे करके पूरा अच्छे से मैच्योर होती जा रही थी क्लाइंबिंग स्किल्स में, मतलब एक्सपर्ट होती जा रही थी क्लाइंबिंग स्किल्स में। और उसका जो एटीट्यूड, उसका ठंड की तरफ मतलब बचाव, उसका रेजिस्टेंस सब बहुत अच्छा था, रिमार्केबल था। उसकी आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस, तो अगर संतोष यादव को डिस्क्राइब करना करता था माउंटेनियरिंग के लिए तो ये सिर्फ ये 3 वर्ड्स यूज़ करते थे और पूरी डिस्क्रिप्शन ख़त्म। फिर अब उसने बार बार वो अपने आप को रिपीट करती गई, उसी में प्रूव करती गई ये माउंटेनियरिंग थी। और अभी हमने पढ़ा था कि वो उसने एवरेस्ट को, सबसे हाईएस्ट पीक को, सेकंड हाईएस्ट पीक को 2 बार क्लाइंब किया था विदाउट वुमेन, मतलब वो वुमेन थी और मैन करे तो तब भी चलो ठीक है उनके विलेज के हिसाब से, लेकिन एक लड़की ने किया तो बहुत ही खुशी की बात है। फिर उसके बाद अब जैसे उसके हार्ड वर्क में, अब उसके हार्ड वर्क में कुछ ना कुछ चीज़ें और ऐड हो रही थी। क्या? कि जो हार्ड वर्क तो वो कर रही थी पढ़ाई के साथ साथ, फिर उसके बाद माउंटेनियरिंग में भी वो साइड बाय साइड काम कर रही थी। अब जब वो 20 ईयर्स की हो गई संतोष, तो उसने माउंट एवरेस्ट की वो सबसे 20 ईयर्स की एज में यंगेस्ट वुमेन थी वो जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया था। If her climbing skills impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in hearts of fellow climbers. सी कितनी अच्छी उसकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, सब उसका कितना अच्छा था, इंप्रेशन भी कितना अच्छा पड़ा। लेकिन एक बार अब जब वो चढ़ रही थी माउंट एवरेस्ट तो समथिंग हैपेंड ऑन द साउथ पोल दैट 2 लोगों को सेम 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 उसके साथ डिफ़िकल्टी के साथ वो फेस हो रहा था कि वो ऑक्सीजन का थोड़ा सा गड़बड़ ही हो गई थी। और माउंटेन पे ऊपर जाते तो ऑक्सीजन लेवल स्लो कम हो जाता है, ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो जो पहला वाला था उसको तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन दूसरा क्लाइंबर जो था मोहन सिंह, उसको संतोष यादव ने ज़रूर बचाया। लेकिन अपना उसने ऑक्सीजन तो शेयर नहीं किया, बट हाँ उसको बचा ज़रूर लिया। फिर 12 मंथ्स के अंदर अंदर 1 साल जैसे वो ऊपर चढ़ के नीचे आ गई, फिर उसी के अगले साल इंडो नेपेलीज वुमेंस एक्सपेडिशन थी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती थी, वो ऊपर गए भी। तो उन्होंने स्पेशली संतोष को बुलाया कि आप प्लीज़ हमारे साथ हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और फिर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम शी स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और उसने बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी बना लिया था। And what was his record? That as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, highest awards of, what was the highest award? It was
Padma Shri, and she was blessed. She was awarded that Padma Shri by the government, Indian government. Then when she just reached at the roof of the world, it's the now at this moment of time in 2021, the top of the world and the roof of the world are different, but at that moment of time, the top, the roof, the peak, everything was same. That was Mount Everest. So when she reached at the top of the world or roof of the world, so she described her feelings, and she said that this word to word she said that it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then उसके बाद उसने क्या किया, ये लाइन बोली, और फिर उसके बाद उसने इंडियन ट्राई कलर फ्लैग को खोला, फोल्ड किया, खोला, और उस रूफ, उस टॉप ऑफ द वर्ल्ड के रूफ पे लगा दी। और उसकी फीलिंग्स बहुत इनडिस्क्राइबेबल थी। ये तो जो उसने बताया तो सिर्फ वर्डिंग्स थी, लेकिन उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, वाओ, मैंने टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं कि वो चक्कर खा के फिर से नीचे गिर गई, और नीचे गिरती तो बुरा ही हाल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने अपने आप को कंट्रोल किया कि हाँ, उसने अपने आप को संभाला कि हाँ, उसने क्लाइंब कर लिया है माउंट एवरेस्ट को। वो भी अब आगे जाके जब इंडो नेपालीज वुमेंस का एक्सपीडिशन ने बोला कि हमें भी ज्वाइन करो, तो वाओ। और वैसे भी उसको तो पता ही था कि हम यहाँ से जाना है, यहाँ पे ऐसी जगहों पे ख़तरा हो सकता है, तो इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपीडिशन को तो ज़्यादा हुआ ही नहीं होगा दिक्कत, क्योंकि उनके साथ संतोष यादव थी। फिर अब उसको, जब वो उसकी फीलिंग्स जो थी बहुत इनडिस्क्राइबेबल थी, और जो इंडियन फ्लैग जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड में लहरा रहा था, वो एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था उसके लिए, और तब उसको लगा कि हाँ, वो एक सच्ची इंडियन है। अब उसने ऊपर जाके, जब वो ऊपर से नीचे आई थी, पीक से नीचे ग्राउंड तक आ रही थी, साउथ पोल तक, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसने रास्ते में उसको इतने सारा गार्बेज मिला, और वो सब नीचे लेके आई। और जब बाकी सब ने कलेक्ट किया, तो वो 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज था, हिमालय से जो आया था। तो आपने देखा, हमारी हिमालय की जो पीक है, वहाँ पे लोग स्पेशली अपना नाम बढ़ाने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे इतना सारा गार्बेज था। अब वो तो होगा ही, क्योंकि वो बीच बीच में जा रहे थे, जैसे चाय बनाई या कोई बिस्किट खाया, तो बिस्किट का रैपर अब वो कहाँ अपने पास तो ना रखेंगे, उन्होंने साइड पे फेंक दिया। लेकिन संतोष यादव उस सबको नीचे लेके, it was so nice. So here ends are the first part of this chapter, and we will start the second part in the next video.